Assalamu alaikum, my dear students. It's class 8, subject social science. Today our topic is agricultural development. Agricultural development. Agricultural development. My dear students, as you already know about the agriculture, agriculture and the substance farming, grain farming, commercial farming, intensive substance agriculture, primitive substance agriculture. You already know these things. Now today we will discuss about the agricultural development, how the Indian agriculture has been developed. My dear students, let us try to understand the agriculture sector is the backbone of Indian economy. Agriculture development refers to the efforts made to increase the farm production in order to meet the growing demand of the increasing population, to increase the farm production by various agriculture resources. My dear students, as you already know that agriculture is the backbone of Indian society, Indian economy. Agriculture is the backbone of Indian economy because most of the people are related with agriculture process, and near about in the world, 50% above population of the world is mostly related with agriculture process. That is why agriculture is called as the backbone of the Indian economy. My dear students, now agriculture development, so many processes have been initiated by government level, by private level, that how to develop the agriculture, how to develop the agriculture production. Now it refers to make the increase of farm production in order to meet the growing demand. क्यों हम बढ़ा रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोसेस को? बिकॉज टू मीट द डिमांड्स ऑफ द increasing population for food. दिन ब दिन पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होती जा रही है. अब इसके डिमांड्स को, इसका फूड जो है, क्रॉप जो है, फ्रूट्स जो है, जो भी चीज़ें हैं उनकी भी उनका इंक्रीज होना ज़रूरी है ताकि पॉपुलेशन की जो नीड है वो पूरी हो जाए. अब इसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में मेहनत चल रही है टू डेवलप, टू इंक्रीज द डिमांड by various methods. Now, first of all, increasing the farm production by various agriculture resources. Number one, new techniques, high yieldings, new techniques, latest methods are being used to increase the production, to give pace to the growth rate of the agriculture development, crop production, which strengthen the economic status of the farmer and uplift the lifestyle. The agriculture development production should be increased so that the lifestyle of the farmer will be uplifted. ये जो एक ज़मींदार है उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसका रहन सहन है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको एक जिसको हम कहते हैं कंफर्टेबल लाइफ बनाने के लिए, उसकी लाइफ को ग्रास रूट लेवल पे उसको क्या देना, उसको उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए डिफरेंट मेथड्स जो है इस एग्रीकल्चर प्रोसेस में, एग्रीकल्चर सेक्टर में दिए गए हैं. मिसाल न्यू टेक्निक्स. अब जो है पुराना तरीक़ाकार जो है यानी हल जोतने का तरीक़ाकार उसको ख़त्म किया गया. अब ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, हाइब्रिड जो सीड्स है वो इस्तेमाल किए जाते हैं.
और इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइजर्स जो है उनका इस्तेमाल होता है, ताकि ये जो प्रोडक्शन है ज़मींदार की जिम्मेदारी में काम आता है, ज़मींदार का जो फार्मर है उसकी प्रोडक्शन जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो जाए, ताकि उसकी इकोनॉमी भी बढ़ जाए और इस तरीके से उसकी लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो जाए और वो दिन ब दिन उसका लाइफ स्टाइल फ्रॉम गुड जो है बेटर की तरफ चला जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट जो इसमें सबसे ज़्यादा जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और जो डेवलप्ड कंट्रीज वहाँ क्या है कमर्शियल फार्मिंग है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग यू ऑलरेडी नो दैट इन डेवलपिंग कंट्रीज इन लाइक इंडिया, इनमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग है जिसमें स्मॉल होल्डिंग्स, ए फार्मर जो है उसके स्मॉल होल्डिंग्स है टू मीट द बेसिक नीड्स, to meet the needs of his family, to meet the needs of his, इसमें जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ये एक फार्मर जो होता है वो अपने फैमिली के जो ज़रूरियात उसके होते हैं वो पूरी हो जाती है। थोड़ा बहुत उसमें वो अगर कहें आसपास भी इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन बेसिक जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ये डेवलपिंग कंट्रीज जो है इंडिया जैसे है, बांग्लादेश है, इनमें जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज है। सो हाउएवर इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए जो है, चाइना जो है, वहाँ ज़्यादातर कमर्शियल फार्मिंग है, जहाँ कैश क्रॉप्स ज़्यादा वजूद में आते हैं और उसको मार्केट में लाते हैं कैश क्रॉप्स। नो डाउट इन इंडिया आल्सो कैश क्रॉप्स यहाँ पे भी है, लेकिन ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ हाउ टू अचीव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब हम कैसे ये अचीव करेंगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे अचीव करेंगे, इसको हासिल कैसे करेंगे, क्या कैसे हम एग्रीकल्चर जो है इसको अपने एक डेवलप्ड नहज पे पहुंचाएंगे। उसके लिए कुछ अहम ऑब्जेक्टिव्स हैं, अहम जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है। नंबर 1, सबसे पहले इंक्रीज द क्रॉप्ड एरिया। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंक्रीज द एरिया फॉर द प्रोडक्शन, यानी हमें जो फील्ड है, जो ज़मीन है, इसके लिए इंक्रीज करना है। इसके लिए दिन ब दिन जो हमें इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन तैयार करना है क्रॉप के लिए। हाँ, इसको हम किसी और चीज़, उसी और पर्पज़ के लिए न लगाएं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रखें, क्रॉप के लिए, प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस ज़मीन को ज़्यादा इंक्रीज करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड किसके लिए रखें, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। नंबर 1। नंबर 2 जो है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, ये जो इसमें क्रॉप्स हैं उनको इंक्रीज करना। इसमें जो इंक्रीजिंग जो ग्रोथ है, क्रॉप्स की ग्रोथ है, जो चीज़ें हम ग्रोइंग फील्ड में करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को, उसके जो हाई सीड्स जो होते हैं, हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल में लाए। नंबर 3, इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी, और सबसे अहम और महत्वपूर्ण जो है, जो सबसे अहम चीज़ जो है, फैसिलिटी जो है, इंक्रीजिंग द इरिगेशन फैसिलिटी। इनके लिए इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दे दें हम इस ज़मींदार को, इस फार्मर को। तो इरिगेशन फैसिलिटी, मिसाल के तौर पर इसके लिए ट्यूबवेल्स दे दें, इसके लिए बड़े बड़े जो है नहरें दे दें, इसके लिए जो है वो कैनाल्स दे दें, इसके लिए जो है ड्रेन सिस्टम, गुड ड्रेन सिस्टम, ताकि इसको अपने फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में इसको आसानी हो जाए, वहाँ इसको सिंचाई करने के लिए जो इसका पानी का इस्तेमाल है और आराम से वो हर जगह उसके ये पानी पहुँचे। नंबर 1 और मोर 1 इज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स जो है वो भी एक अहम हिस्सा है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। द इंक्रीजिंग डिमांड जो है, इस वक्त पॉपुलेशन जो इंक्रीज दिन ब दिन हो रही है, अब इस इंक्रीजिंग डिमांड के लिए न्यू फर्टिलाइजर्स, न्यू टाइप ऑफ टेक्निक्स, न्यू टाइप ऑफ मेथड्स वी हैव टू स्टार्ट इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। अब हमें इसमें क्या करना है, फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करना है। सबसे अहम जो फर्टिलाइजर है, जो मिनरल फर्टिलाइजर
फर्टिलाइज़र है वो इस्तेमाल करें। उसके लिए हमें काम करना चाहिए जो मिनरल फर्टिलाइज़र जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, घर में जो कूड़ा करकट वगैरह जो है, कावडंग है, इसी तरह से जो फुजला जो निकलता है घर में, उसको एक पिट जो होता है हमारे घरों में होता है जिसको हम पिट कहते हैं, उस पिट में डाल के जब वो तैयार होता है और उसको एक बहुत ही अहम डोमेस्टिक फर्टिलाइजर बनता है, और डोमेस्टिक खाद जो बनती है, घरों से निकलने वाली खाद बनती है, उसको फील्ड में इस्तेमाल करें। और ये फर्टिलाइज़र इसी तरीके से बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे पोटाश है, जैसे यूरिया है, जैसे डीएपी वगैरह है, इनका हम इस्तेमाल करें। लेकिन इस फील्ड का, इस एग्रीकल्चर का, इस ज़मीन का, इस सॉइल का पूरी तरह से ख्याल रखें। इसकी जो फर्टिलिटी है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो जाए, न कि डिक्रीज हो जाए। नंबर लास्ट वन, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स। हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स जो है उनका इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अच्छी तरह से वजूद में आए।